meeting. Talking about the transact. So first of all, as I told you, transact solves your business problems like purchase, sales हो गया, documentation जो manage करना होता है, quotations हो गए, inventory हो गया, आपका payment जो आ रहा है, approvals हो गए, different features यहाँ पे available हैं, along with the production features. Okay, as soon as you log in into the system, you'll see this page. Over here, so first again there are two type of version of transact. One is which is lifetime free modules. So as you can see in the screen, यहाँ पे जो 10 modules दिए हैं ये lifetime free है, like transactions, which as the name suggests, this is आपका purchase और sales के सारे transactions यहाँ पे होते हैं, जितने भी documentation हो गए, quotation में again जो आप sales quotation बनाते हो या RFQ बनाते हो, so those things are captured over here. Payments में जो भी आप payment log करते हो invoices के case में, that those things are, yes, I guess someone's trying to say something. If anything is there, you can just raise a chat. Okay. उसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो इन्वेंट्री ऑप्शन है जहाँ पे यू कैन मैनेज योर परचेस ऑल द इन्वेंट्रीज, बी इट योर रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड, एवरीथिंग कैन बी मैनेज्ड ओवर हियर. सो ये सारा आपके फ्री वर्जन में आता है. I guess Mr. Ayan is trying to say something, but I'm not sure. Mr. Ayan, you're on mute. I can hear you, and I can't see any chat raised by you. Can you please write it on the chat so if you're facing any issue? I guess ठीक है, अगर कुछ होगा आप चैट पे डाल देना, अदरवाइज आई एम कंटिन्यू. ठीक है, तो ये लाइफ टाइम फ्री मॉड्यूल्स जो आते हैं, देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ यूजर्स या फिर बाकी कोई भी चीज आप जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, किसी चीज पे लिमिटेशंस नहीं होती. Along with that, there are paid version as well, in which you will get a production, resource planning, and subcontract. ये तीन मॉड्यूल एडिशन होते हैं. First, in this session, we'll only discuss about the free modules कि इससे आप transact से कैसे benefit हो सकते हो. Then later on a later half of the session, we'll discuss about the production, resource planning, and subcontract. ये क्या होता है? I'll give you an idea about it. To start with, I'll prefer to start first of all कि आपके output क्या निकलते हैं system से. अगर मैं system लगाता हूँ तो मेरा benefit क्या होगा, कि किस problem को मैं एकदम easily solve होगी. So starting with the output part of the system, that is business intelligence. I'll just quickly jump on that. Here in business intelligence, what we have done is we have distributed into 6 verticals like sales order, sales invoice, purchase, quotations, accounts, and inventory, as you can see on the screen on the top right. Sorry. So in this, like आप sales order page पे अगर बात करोगे तो we have graphs like sales order month on month कितना sales हो रही है उसका यहाँ पे review दिख जाता है, region wise sales क्या जा रही है, आपका customer wise कितना हो रहा है, जो top customers हैं, top products कौन से हैं sales में, आपका category में top categories कौन सी हैं, those distributions are there. Along with we have 3 cards created over here. So smart cards बोलते हैं इसको, जैसे order due today, order due in next 7 days, and order overdue. So typically we as a company, as a manufacturing company or as a trading company, we always try कि मेरा order overdue नहीं हो, but still होता तो है. In many of the cases ऐसा होता है timely dispatch नहीं हो पाता. So we always need a quick snapshot कि यार क्या क्या pending है. You can just click on view details. आप देख लो हर जगह details का बटन दिया हुआ है. आप इस कार्ड पे क्लिक करते हो, you'll get a report will get generated which will show you all the details of कि कौन कौन से कस्टमर का है, ऑर्डर नंबर क्या है, कब ऑर्डर आया था, किस आइटम का आया था, एंड देन कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर था. इफ यू हैव डन एनी पार्शियल डिस्पैच इन दैट बिहाफ वो दिख जाता है, बैलेंस क्वांटिटी कितना है एंड करंट स्टॉक कितना है. ऑल्सो इट हेल्प्स टिपिकली, जब मैंने बिजनेस ओनर से बात करता हूँ हाउ इट इज हेल्पिंग देम, सो दे टिपिकली डू कि एक फिल्टर लगाते हैं यहाँ पे कि उनका फोकस एरिया क्या है. जैसे इन दिस केस इफ विल सी कि मेरा टोटल ऑर्डर है 1,66,64,000 समथिंग का विच इज पेंडिंग. इसमें से अगर मैं टिपिकली देखूँ तो ऊपर के 4 ऑर्डर्स कर लूंगा तो मेरा 70% से ज्यादा इस 4 ऑर्डर में अमाउंट. तो यहाँ से सबसे मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट. फॉर अ बिजनेस ओनर इट इज वेरी इजी टू ट्रैक कि मुझे ये 4 ऑर्डर पे प्राइमरी फोकस रखना है, बाकी ऑर्डर चलते रहेंगे. So this is one of the use case what business owner told me. मतलब मैंने मल्टीपल बिजनेस ओनर से बात की, उन लोगों ने बताया कि यार ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल यहाँ पे हुआ है.
जंपिंग बैक टू बिजनेस इंटेलिजेंस, सो सिमिलरली जैसे आप सेल्स ऑर्डर में देख रहे हो, सिमिलरली सेल्स इनवॉइस में या फिर परचेज में देखोगे, परचेज में भी आपका इस तरह से डिफाइंड है कि सप्लायर वाइज, परचेज वाइज, ये सारे ग्राफ्स बने हुए हैं। अगेन यहाँ पे जो मोस्ट यूज्ड कार्ड होता है दैट इज ऑर्डर ड्यू इन नेक्स्ट 7 days। सो इसका पर्पस क्या होता है टिपिकली, कि फॉलो अप करने में इजी होता है। यस, ओके, जस्ट लेट मी पुट ईयरफोन्स, आई गेस मेरी आवाज ऑडिबल नहीं है शायद। हेलो, अब भी मेरी आवाज आ रही है सबको? कूल। सो ऑर्डर, थैंक यू। ऑर्डर ड्यू इन नेक्स्ट 7 days जो होता है वो सबसे ज्यादा यूजफुल होता है इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग अप। तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए कभी भी कि सरप्राइज डिले हो रहा है। तो एटलीस्ट ये बेनिफिट होता है कि अगर फॉलो अप कर लिया परचेस टीम ने प्रॉपरली टाइम पे, तो अगर डिले हो भी रहा है तो इन्फॉर्म डिले है। दैट इज समथिंग द यूज केस ऑफ दिस ऑर्डर ड्यू इन नेक्स्ट 7 days कार्ड। बाकी आपके रेगुलर रिपोर्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इन टर्म्स ऑफ कोटेशन इफ आई टॉक अबाउट, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बिजनेस ओनर के लिए होता है कन्वर्जन रेट, कि मेरा कन्वर्जन कितना चल रहा है। जितने मैं कोटेशन भेज रहा हूँ उसमें इज व्हाट इज माय प्रॉब्लम, कि मैं कोटेशन कम भेज रहा हूँ या मेरा कन्वर्जन कम है। अयान विल टेक द एनी रिक्वेस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। आपने बोला कि अभी जब ये एक बार मैं पूरा दिखा देता हूँ, उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, विल हैव अ ओपन डिस्कशन ऑन दैट। तो मेरा कन्वर्जन रेट कितना जा रहा है वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है। आप टेन्योर चूज कर सकते हो, लास्ट 6 मंथ, 3 मंथ, कस्टम डेट्स, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके हिसाब से आप देख सकते हो। प्लस फॉर एनी बिजनेस ओनर, या वीकली मीटिंग कर रहे हो या फिर मंथली मीटिंग कर रहे हो, उसमें आपको एक डेटा चाहिए। डेटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितने ऑर्डर्स, कितने कोटेशंस ऐसे हैं जो ओपन पड़े हुए हैं जिसपे मुझे ऑर्डर ही नहीं आया है। सो दैट रिपोर्ट इज हैंडी विथ यू, लाइक फॉलो अप इन लास्ट 30 days या फॉलो अप इन लास्ट 7 days। सो दिस इज अ डमी प्रोफाइल, इसलिए यहाँ पे कहीं कहीं पे डेटा नहीं दिख रहा है, बट अदरवाइज वो यहाँ पे कवर्ड होता है। Talking next is account side. So for again for anyone running a company, this is important कि how much is my payable, receivable, total paid कितना है, total receive कितना है, वो सारी quantities आपको यहाँ पे amounts यहाँ पे दिख जाते हैं। उसका breakup month on month भी दिख जाता है, प्लस आपका receivable wise, payable wise या फिर supplier wise, customer wise आपको information देखनी है, तो वो यहाँ पे graph given है। Similarly, अगर again the most another important part aspect of the any company is inventory। सबसे important चीज होता है मेरा स्टॉक वैल्यूएशन कितना जा रहा है। सो दैट इज समथिंग जिसके लिए हम हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं कि मेरी टीम से आएगा रिपोर्ट, तो मैं देखूंगा, तो उसके बाद कैलकुलेशन करूंगा, उसमें चांसेस ऑफ एरर निकालूंगा। वो आपका यहाँ पे डायरेक्टली आपको एक क्लिक पे दिख जाता है मेरा स्टॉक वैल्यूएशन क्या है। नॉट ओनली दैट, अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मेरा स्टॉक सही जगह इन्वेस्टेड है कि नहीं, मेरा पैसा सही जगह इन्वेस्टेड है कि नहीं। सो यहाँ पे हमने मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल के बेसिस पे ये ग्राफ दिया हुआ है। जो आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हो कि लेट से एक्सेस स्टॉक है, तो दैट इज समथिंग, दीज आर द आइटम्स जिसका मैंने मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिफाइन किया था, फिर भी उसके ऊपर मैंने परचेज कर रखा है। लो स्टॉक इज समथिंग, ये रीऑर्डर लेवल के नीचे जा चुका है, तो इसका ऑर्डर प्लेस हुआ है कि नहीं, आई नीड टू चेक विद सप्लाई माय परचेस टीम। एंड ऑप्टिमम इज समथिंग जो कि आपका आइडियल स्टॉक है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है। सो दिस आर ऑप्शंस। उसके बाद आपका स्टॉक वैल्यूएशन देखना है, फिर आपको ये देखना है, कैटेगरी वाइज देखना है कि कैटेगरी वाइज टॉप सेलिंग आइटम कौन से हैं, कैटेगरीज कौन सी हैं, टॉप बॉट कैटेगरीज कौन सी हैं, एक्सेस स्टॉक में कौन सा आइटम है। जैसे मैंने जो ऊपर एक आइटम है ग्लोब वर्ल्ड 2 mm, दिस इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज 100, स्टिल हमारे पास 1609 पड़ा हुआ है। तो देन दैट इज डेफिनेटली अ क्वेश्चन कि यार इतना ज्यादा बना के क्यों रखा हुआ है, क्या पर्पस क्या है जब मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमने एक डिफाइन कर रखा है। सिमिलरली लो स्टॉक लेवल का जो यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाती है। So these were one kind of output where you can see the graphical representation of the data. Apart from that, we also have a report section where you get 65 plus reports readily available for you. Like in sales side में आप देखोगे different reports है, purchase में reports हैं, product and service, stores, quality, general, production and accounts, dispatch, तो multiple heads की अलग अलग reports बनी हुई हैं यहाँ पे, which are ready to use. So आपके लिए as a business owner, as a business head, या फिर आप बोलो डिपार्टमेंट हेड हो गए, या फिर जो परचेज वाले बंदे हैं, सेल्स वाले बंदे हैं, उनके लिए भी, सबके लिए इजिली एक्सेसिबल रहता है। सबको कंसिडर करके ही सारा डेटा रिपोर्ट्स में पुश किया हुआ है। लेट्स से मुझे ऑर्डर वाइज, आइटम वाइज ऑर्डर देखने हैं, मेरे कितने सेल्स ऑर्डर है, आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस रिपोर्ट, आई कैन चूज द फिल्टर द वे आई वांट टू, और उसके बाद मैं जनरेट रिपोर्ट कर सकता हूँ।
जैसे ही मैं जनरेट रिपोर्ट करता हूँ, आपको जो मैंने पहले भी रिपोर्ट दिखाई थी, सिमिलर काइंड ऑफ रिपोर्ट जनरेट हो जाती है विच ऑल द डेटा। यहाँ पे यू गेट अ फ्लेक्सिबिलिटी। लाइक अभी मैंने 27 हेडर्स सेलेक्ट किए हैं, जैसे कस्टमर नेम, ओसी नंबर, ये सब एक एक हेडर हो गया। ऐसे 26 कॉलम्स सेलेक्ट किए हुए हैं। आपके जो भी डेटा कैप्चर हो रहा है, ऑल द डेटा कैन बी सीन इन द रिपोर्ट, लाइक फेच किया जा सकता है। मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो 77 हेडर्स हो गए। सो वट एवर डेटा इज गेटिंग कैप्चर्ड वाइल क्रिएटिंग क्रिएशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, वो सारा डेटा यहाँ पे आपके पास हैंडी रहता है। नॉट ओनली दैट, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट इन एक्सेल। आपको जब यू नीड टू प्ले अराउंड, बहुत लोग एक्सेल में कंफर्टेबल होते हैं कि मुझे एक्सेल में डेटा चाहिए, तो वो यहाँ पे इजिली डाउनलोडेबल है। सो दैट कैन बी डन। सो whatever we have seen till now is the output part. अब क्वेश्चन आता है, यार डेटा तो दिखा रहे हो लेकिन ये डेटा आ कैसे रहा है, कहाँ से डेटा आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए first we need to understand three things. One is three masters of the system, that is settings, buyers and suppliers, and inventory. Just a basic idea about that, and then we'll jump into the ये फ्लो, बिजनेस फ्लो, कि आपका एक कोटेशन से लेके इंक्वायरी आई है, वहां से लेके आपको उसको डिस्पैच कर दिया फाइनली, उसका पूरा फ्लो में जितने भी इफ एंड बट्स होते हैं वो कैसे कवर होगा। So we'll just quickly jump to the settings part to show, give you an idea which will help you understand the flow. सो सेटिंग्स टिपिकली क्या होता है, आपकी कंपनी का डिटेल्स होता है, जिसमें आपके बिलिंग एड्रेस, आपका डिलीवरी लोकेशन, आपका बैंक डिटेल, आपका पेमेंट टर्म्स एंड अदर टीम्स, और ये सब चीजें यहाँ पे डिफाइन करता है। दीज आर द वन टाइम सेटअप विच यू डू। ये आप रोज रोज चेंज नहीं होता आपका, ठीक है। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको आगे समझाऊंगा। सेकंड होता है बायर्स एंड सप्लायर्स। बायर्स एंड सप्लायर्स में आपके जितने भी काउंटर पार्टी होते हैं, जो भी आपके बायर हैं, आपके सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, उन सबका डेटा यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेव होती है। यू कैन अपलोड इट एक्सेल से या फिर सिंगली ऐड कर सकते हो, बोथ वेज इट हैपन। यहाँ पे उनके सारे डिटेल्स लाइक डिलीवरी लोकेशन, बिलिंग एड्रेस, आपके सामने वाली काउंटर पार्टी का उनका नाम, जीएसटी नंबर, टैक्स, कंपनी सेटिंग्स और ओपनिंग बैलेंस, ये सब कुछ यहाँ पे सेव कर सकते हो। देन कैसे होगा, कितने डिटेल में होगा, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। अभी जस्ट टू गेट यू एन आइडिया, सो दैट मैं जब फ्लो दिखाऊंगा तब आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि ये कैसे हो रहा है। नेक्स्ट थिंग इज इन्वेंट्री, वेयर यू कैन सी ऑल द इन्वेंट्री आइटम्स आपके बाई टाइप के हैं, सेल टाइप के हैं, आप प्रोड्यूस कर रहे हो, सेमी फिनिश गुड है, रॉ मटेरियल जो भी है, वो बॉट आउट पार्ट्स है, वो सब कुछ यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। उसका मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, टैक्स परसेंटेज, एवरीथिंग कैन बी डिफाइंड ओवर हियर, ठीक है। तो ये तीन चीज, लेट्स से कि मैंने एक सिस्टम पे ये तीन चीज डिफाइन कर दी। अब मैं देखता हूँ कि मेरा सिस्टम रन कैसे करेगा, डे इन डे आउट कैसे रन करेगा। क्योंकि अभी तक जो तीन चीज देखी है मैंने, वो रेगुलर चेंज नहीं होती है, वो आपका काइंड ऑफ मास्टर सेट हो जाता है। से कुछ कुछ आइटम ऐड हो रहे हैं, कुछ कुछ बायर्स ऐड हो रहे हैं, दैट इज ऑलवेज अ प्रोसेस, बट ये मैक्सिमम टाइम वो सेव रहता है, मास्टर डेटा में सेव रहता है। नाउ विल स्टार्ट विद अ फ्लो वेयर, लेट्स से कि मुझे एक इंक्वायरी आई है, वो किसी भी एंगल से आई है, भले मेल पे, कॉल पे, कैसे भी आई है, आई नीड टू रिएक्ट ऑन दैट। तो वो कैसे होगा? तो फॉर दैट मैटर आई जंप टू द कोटेशन मॉड्यूल टू अंडरस्टैंड दैट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दिस पेज। इस पेज पे क्या डिटेल दिख रही है? तो मैं कोटेशंस की डिटेल देख रहा हूँ। क्रिएशन स्टेटस इज सेंट है, इसमें मैं ड्राफ्ट भी देख सकता हूँ, रिसीव देख सकता हूँ, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी हैपन। अगेन कन्वर्जन स्टेटस देख सकता हूँ कि यहाँ पे पेंडिंग कितने हैं, कन्वर्टेड कितने हैं। इफ यू रिमेंबर, जो मैंने पहले बीआई जब दिखाया था बिजनेस इंटेलिजेंस में, मैंने आपको कन्वर्जन रेट दिखाया था कि कन्वर्ट कितने हो रहे हैं। वो कन्वर्टेड यहीं से आता है कि कन्वर्टेड कितने हुए हैं। कैसे काम करता है वो मैं आगे दिखाऊंगा। Let's say I need to create a new sales quotation and share it with my customer. So what to do now? So I'll just click on create document and sales quotation. यहाँ पे system will ask you either you want to create it for a new buyer or the existing one. अगर new है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, otherwise existing को you can just select it from here. तो ये जो सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, या यहाँ पे उसकी जो डिटेल्स फेच हो गई है, ये डिटेल्स जो मैंने आपको बायर्स एंड सप्लायर्स दिखाया था यहाँ पे, वहां से फेच हो रही है, ठीक है। अगेन जो सेटिंग्स से मैंने वहां पे दिखाया था आपको, सेटिंग्स में आपकी कंपनी की डिटेल थी, तो डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ की जो डिटेल्स है लाइक पेमेंट टर्म्स जो है, ये सारा अपने सेटिंग्स में अपनी कंपनी का डिटेल सेव कर रखे हैं, वहां से फेच हो रहा है। जैसे मुझे इंक्वायरी नंबर डालना है, and query date is yesterday's date, ठीक है, कल मेरे पास इंक्वायरी आई है, नाउ आई वांट टू रिएक्ट ऑन दैट। तो मैंने ऊपर की बेसिक डिटेल्स पढ़ ली, बाकी मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जो भी आइटम्स हैं मेरे, वो यहाँ पे आ जाएंगे। लेट्स से मैं ग्लोबल का एक आइटम लेता हूँ,
ठीक है, ग्लोबल 2 mm लिया मैंने, इसका 10 क्वांटिटी का है। एज यू कैन सी आप यहाँ पे HSN कोड, प्राइस, ये सब कुछ फेच हो गया है इन्वेंट्री से, जो हमने यहाँ पे देखा था इन्वेंट्री में मास्टर सेट किया था। अगेन यू कैन मेक द चेंजेस, लेट्स से आपको प्राइस में चेंज करना है, किसी को डिफरेंट कोटेशन है, इसको 7200 का कोटेशन है, दैट कैन बी डन। यहाँ पे एक एडिशनल फील्ड देख रहे हो आप, मॉडल नंबर की। सो दिस मॉडल नंबर फील्ड इज नॉट अ प्री डिफाइंड फील्ड। अभी मेरी आवाज ऑडिबल है आई गेस? हाँ ठीक है। तो जैसे आप ये मॉडल नंबर देख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि मॉडल नंबर आप अगर अपनी प्रोफाइल खोल के देखोगे तो शायद नहीं दिख रहा होगा। उसका रीजन क्या है कि मैंने ये एडिशनल फील्ड डिफाइन की है। आप अपने हिसाब से कोई भी एडिशनल फील्ड यहाँ पे आइटम वाइज या फिर प्राइमरी डिटेल्स में डिफाइन कर सकते हो, विच इज इन द सेट फ्रॉम द सेटिंग्स मॉड्यूल। सेटिंग्स में कैसे होता है वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा, लेकिन वहां से डिफाइन करने का ऑप्शन है। लेट्स से मैं मॉडल पे डाल देता हूँ A0001, ये मॉडल नंबर डाल दिया। ये कैसा दिखेगा दिखाने के लिए मैंने डाला है। नेक्स्ट इज आप यू कैन ऐड एन नंबर ऑफ आइटम्स फ्रॉम हियर। आपका एडिशनल चार्ज है वो डालना है, डाल सकते हैं आप यहाँ पे लॉजिस्टिक टर्म्स, ये लॉजिस्टिक डिटेल्स, अगेन ये सारी डिटेल्स जो आप देख रहे हो ना ऑप्शन आ रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस मैंने सेटिंग्स में सेव करके रखे हुए हैं। मैंने टर्म्स एंड कंडीशन को सेव करके रखी हुई है, वो सारे यहाँ पे दिख गए। कमेंट में कुछ एडिशनल टर्म्स डालने हैं वो डाल सकते हैं, कुछ डिजाइन शीट, कैटलॉग या फिर इमेजेस कुछ भी डालना है आपको, फाइल्स डाल दी हैं, कैलकुलेशंस डाल दी है, जो भी डालना है आप अटैचमेंट में डाल सकते हैं, या फिर उनकी जो इंक्वायरी डॉक्यूमेंट आया है उसका ही फोटो डालना है, कुछ भी डालना है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है। देन एक चीज है ईमेल प्रीव्यू। तो सामने वाले को कैसा मिल जाएगा, तो वी ऑलवेज टेंड, क्योंकि कोटेशन क्या होता है, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कंपनी, तो वो ब्यूटीफुली जाना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा जैसे आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया है अमेजोन से या मेक माई ट्रिप से फ्लाइट बुक करते हो, तो जो ईमेल आता है उसमें बहुत इजी टू रीड एक स्नैपशॉट रहता है पहले, कि आपके इस डॉक्यूमेंट में डिटेल क्या है। तो बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल, आपके जैसे फ्लाइट बुक किया, मुझे फ्लाइट के ऊपर की सारी डिटेल्स दिख जाती है। सिमिलरली अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को खोलूं उससे पहले मुझे एक आइडिया लग जाए कि हाँ क्या है, तो आपका लोगो आ जाता है यहाँ पे, आप ग्रीटिंग्स, एंड देन उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या डिटेल्स हैं एक रफ आइडिया लग जाता है मुझे। देन अगेन विथ योर ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सारे डिटेल्स आपकी कंपनी के आ जाते हैं। दैट विल ईज आउट फॉर द कस्टमर टू, अगर उनको इंक्वायरी करनी है, रिवर्ट करना है, कुछ करना है, प्लस अटैचमेंट भी एडेड रहता है यहाँ पे। ठीक है। Now the tax and everything is getting calculated automatically based on the place of supply um, of the counterparty. ठीक है। इससे इस पूरे डॉक्यूमेंट को मैंने इतनी डिटेल में इसलिए समझाया है क्योंकि टिपिकली आप ट्रांजैक्ट पे कोई भी डॉक्यूमेंट देखेंगे ना, उसमें ये 3 सेक्शंस कॉमन रहेंगे। फर्स्ट इज द योर कंपनी डिटेल एंड काउंटर पार्टी डिटेल्स, आइटम डिटेल्स एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सो ये 3 सेक्शन हर डॉक्यूमेंट में कॉमन रहते हैं। यू कैन सेव अ ड्राफ्ट, लेट्स से मुझे अभी इंक्वायरी लेवल पे सेव करके रख लेना, तो सेव ड्राफ्ट करके रख लिया। अदरवाइज मैं सेव एंड सेंड कर सकता हूँ। सेव एंड सेंड करने पे अगेन यू हैव एन ऑप्शन टू सेंड फॉर अप्रूवल, और एल्स अगर मैं ही ऑथराइज हूँ, जैसे इन दिस केस आई एम ऑथराइज टू अप्रूव दिस डॉक्यूमेंट, तो आई कैन डायरेक्टली सेव एंड सेंड इट। सो अगेन दैट रूल कैन बी सेट बाय यू, कि कौन सेंड करेगा कौन नहीं करेगा, वो रूल आप सेट कर सकते हो। ठीक है। as soon as you will click on save and send, आपकी काउंटर पार्टी को एक ईमेल तो चला ही जाता है, प्लस यू ऑल्सो गेट एन ऑप्शन टू शेयर इट ऑन व्हाट्सएप। जैसे मुझे व्हाट्सएप पे करना है शेयर, यहीं से मैं कर सकता हूँ। अब इस जर्नी में अभी मैंने देखा कि यार एक इंक्वायरी आई थी, उसका एक मैंने कोटेशन ड्राफ्ट किया है, उसके बाद कोटेशन अप्रूव करा के सेंड कर लिया, इस टाइप के ऑप्शन हैं। नाउ व्हाट नेक्स्ट? टिपिकली अगर मैं इंडिया में बिजनेस की बात करूं तो आपके कोटेशंस के ऊपर क्या तो नेगोशिएशन हो रहा है, क्या तो वो ऑर्डर आएगा, या नेगोशिएशन होगा, या वो ऑर्डर नहीं आएगा। ये तीन ही चीज हो सकती है टिपिकली। तो मैं अदर एक्शन में जाता हूँ। यहाँ पे अमेंड का ऑप्शन है इन केस ऑफ नेगोशिएशन, कैंसिल का ऑप्शन है इन केस आपको ऑर्डर नहीं आ रहा है, ये कंफर्मेशन आ गया है, और जनरेट ओसी का ऑप्शन है। व्हाट डज इट मीन? कि आपका ऑर्डर कंफर्म अगर हो जाता है तो आप इसके अगेंस्ट में ऑर्डर कंफर्मेशन बना सकते हैं। सिस्टम में बेनिफिट क्या होता है कि अब मुझे सारी डिटेल दोबारा नहीं डालनी, ऑल द डिटेल विल गेट फेच्ड डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीवियस डॉक्यूमेंट। अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है, लेट्स से कोटेशन उसने 10 का मांगा था, लेकिन ऑर्डर फाइनली 12 पीस का आया, रेट में कुछ चेंजेस हो गए, तो वो रेट चेंजेस कर लिए। उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ एडिशनल चार्ज है जो मैंने कोटेशन लेवल पर नहीं डाला था। कई बार हम लोग एडिशनल चार्ज, पैकेजिंग और ये सब नहीं डालते हैं, तो वो सब आप यहाँ पे डाल दिया। पैकेजिंग चार्ज लेट्स से मैंने 100 रुपीज डाल दिया, टैक्सेस, तो वो मैं डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अगेन यहाँ पे कुछ टर्म्स चेंज करने हैं, कुछ करना है, वो सब किया जा सकता है। यहाँ पे लेट्स लेट मी गिव यू
name to this transaction, and then I can again. अच्छा हाँ, एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, डिलीवरी डिस्पैच डेट डाला, क्योंकि कोटेशन में हम लोग डिस्पैच डेट नहीं देते हैं। अब हमारे पास टिपिकली पीओ में डिस्पैच डेट होगी कब तक एक्सपेक्टेड है, तो वो डाल के 7 सेंड कर सकते हैं। अगेन अप्रूवल का ऑप्शन है, लेट्स से मैं 7 सेंड कर देता हूँ यहाँ पे। सो नाउ अभी तक क्या हो गया कि मेरे पास एक ऑर्डर, मैंने कोटेशन भेजा, उस पर एक ऑर्डर आ चुका है। आई बिलीव दैट टिल नाउ द प्रोसेस इज क्लियर विद एवरीवन। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज चैट पे डाल दीजिएगा, आई विल लुक इनटू दैट। ठीक है। नेक्स्ट अब क्या होगा, तो अभी यहाँ से दो ऑप्शन खुल जाते हैं। क्या तो अगर मेरा पेड वर्जन है इन केस ऑफ प्रोडक्शन, तो मैं उसकी एमआरपी, बिल ऑफ मटेरियल देखूंगा, एमआरपी रन करूंगा, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, एंड देन विल गो फॉर द प्रोडक्शन। उसके लिए फिर परचेज करूंगा, परचेज के बाद प्रोडक्शन पे जाऊंगा। अगर मैं पेड वर्जन नहीं लेता हूँ तो भी हाउ आई कैन रिएक्ट ऑन दिस थिंग, कि टिपिकली आज भी आपका क्या होता है कि इसके बाद आपकी एक टीम होती है प्रोडक्शन की या प्लानिंग की जो टीम होती है, वो आपके दो रिपोर्ट्स देखती हैं। एक होता है आपके क्या ऑर्डर है, कब डिस्पैच करना है, वो रिपोर्ट आप यहाँ ऑर्डर कंफर्मेशन या सेल्स ऑर्डर रजिस्टर आइटम वाइज में देख सकते हो। दूसरी आपकी रिपोर्ट होती है प्रोडक्ट प्राइस एंड इन्वेंट्री, जिसमें आपको पूरा स्टॉक रिव्यू मिल जाता है कि अभी तक क्या क्या मटेरियल है। बेस्ड ऑन दिस एंड बिल ऑफ मटेरियल, आपकी टीम बनाती है कि एक ऑर्डर लिस्ट बनाती है कि मेरा ये आइटम स्टॉक में नहीं है जो मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है। अगर इफ यू आर यूजिंग द प्रीमियम वर्जन, तो ये आपको ये तीनों रिपोर्ट यहाँ से मिल जाएगी। कैलकुलेशन नीड टू बी डन ऑन एक्सेल, तो आप एक्सेल में तीनों रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हो, रिपोर्ट डाउनलोड करके कैलकुलेट कर सकते हो। वंस यू हैव द लिस्ट ऑफ आइटम्स विच नीड टू बी ऑर्डर्ड, उसके बाद यू हैव अगेन टू ऑप्शंस। क्या तो वो नए एकदम आइटम है जो मुझे, जिसका मुझे कोटेशंस भी नहीं मिला है, अभी मुझे प्राइस का आइडिया भी नहीं है, मुझे सप्लायर से वेंडर्स ढूंढने हैं, उसका कोटेशन लेना है। तो मैं यहाँ पे कोटेशन में जाके, एक ऑप्शन होता है RFQ का, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, वो कर सकता हूँ, जिसमें आई कैन सेंड द रिक्वेस्ट टू मल्टीपल सप्लायर्स कि सबके प्राइस मंगाने के लिए उसका कंपैरिजन शीट बन जाता है। आई जस्ट शो यू द कंपैरिजन शीट, आई वोंट गेट इनटू डिटेल ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैंने ये सारे आइटम्स के लिए कोटेशन मांगा था तीन लोगों से, महाराष्ट्र स्टील, बालाजी कॉर्पोरेशन, जेपी इंटरप्राइजेस। ठीक है। इन तीनों में से दो लोगों ने कोटेशन दिया था, उसका कंपैरिजन शीट मुझे यहाँ पे दिख जाता है। मैं यहीं से ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ उसके लिए। मुझे अगर कोटेशन नहीं भेजा उसने, तो मैं उसके बिहाफ में कोटेशन पंच कर सकता हूँ उसका। लेट से कई बार ऐसा होता है कि लोग फोन पे ऑर्डर, फोन पे प्राइस बताते हैं, ईमेल पे अलग सिस्टम से ईमेल भेज देंगे, उस केस में आप यहाँ पे पंच करके कंपैरिजन शीट बना सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस। इन जनरल क्या होता है, रेगुलर आइटम्स अगर होते हैं तो हम लोग उसका डायरेक्ट पीओ बनाते हैं। तो डायरेक्ट पीओ में यू कैन जस्ट जंप टू ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन पे यहाँ पे क्रिएट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, जहाँ से आप पीओ बना सकते हो। परचेज ऑर्डर बनाने का प्रोसेस वाइज इट इज प्रीटी मच सेम जो हमने पहले देखा था, कि आप यहाँ पे अपने सप्लायर का नाम या तो सिलेक्ट कर लो या फिर ऐड कर लो, एंड टिपिकल जो हमने कोटेशन में डॉक्यूमेंट देखा है सेम प्रोसेस होता है यहाँ पे। वंस यू हैव क्रिएटेड एन परचेज ऑर्डर, उसके बाद नेक्स्ट क्या स्टेप होते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आप ट्रांजैक्शन पेज में जितने भी ट्रांजैक्शंस बनाते हो, भले वो परचेज के हों या सेल्स के हों, वो उस सब ट्रांजैक्शन का एक टाइमलाइन बन जाता है। व्हेन आई से टाइमलाइन, इट मींस कि उसका ट्रांजैक्शन टाइम यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें पहला इनिशिएटेड डॉक्यूमेंट इस केस में पीओ है। पीओ के अगेंस्ट में आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट बना सकते हो, जैसे इनवर्ड हो गया, इनवर्ड इज यूज्ड व्हेन यू रिसीव अ मटेरियल, तो इनवर्ड बना दिया। उसका टैक्स इनवॉइस आया है परचेज से, जो सप्लायर का, वो पंच कर लिया। प्रोफॉर्मा इनवॉइस भेजा है, वो पंच कर लिया। आपने कुछ एडवांस दिया है, उसकी जो रिसिप्ट आई है उसकी एंट्री कर ली। या फिर कुछ माल बच गया जो कि डैमेज था, मटेरियल आया डैमेज था, तो डिलीवरी चालान बना सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस आर देयर। जैसे मैंने यहाँ पे पीओ बनाया है, फिर एआरवी बनाया है, एडवांस रिसिप्ट वाउचर। तो 11,020 रुपए का पीओ था, 5,510 रुपए मैंने एडवांस दिया हुआ है। अब लेट्स से मटेरियल अगर इसका आया है, तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन इनवर्ड, ऑल द डिटेल्स विल गेट फेच्ड फ्रॉम द पीओ। तो पीओ से आपको पता है कि क्या क्या आइटम ऑर्डर किया था, मुझे बस ये क्वांटिटी मिलानी है कि ये इतना ही मटेरियल आया है, कम आया है, ज़्यादा है। कोई मटेरियल नहीं आया है तो उसका क्वांटिटी मिला लिया, मिला के सेव एंड सेंड कर दिया। जैसे ही आप सेव एंड सेंड करोगे, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। यू कैन डिफाइन द रीजन ऑफ, अगर कोई नहीं आया है, रिजेक्शन है, कुछ भी है, तो वो रीजन वहाँ पे डिफाइन किया जा सकता है। कमेंट ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद नाउ यू हैव द मटेरियल, आपने इनवर्ट ले लिया, सब कुछ कर दिया, आपकी इन्वेंट्री में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा कि इतना आइटम अब हो चुका है। ठीक है। लेट्स से अब मेरे पास क्या है कि मुझे पता है कि प्रोड्यूस क्या करना है, मुझे पता है सारे रॉ मटेरियल है या जितने भी रॉ मटेरियल चाहिए थे वो हैं। अब प्रोडक्शन कैसे चलेगा,
अभी आज की डेट में अगर मैं टिपिकली बोलूं कि किसी भी कंपनी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कैसे चलता है कंपनीज में, तो इफ यू आर एबल टू रिलेट टू इट, अगर प्रोडक्शन साइकिल की बात करूँ तो नॉर्मली प्रोडक्शन टीम के पास एक जॉब कार्ड या वर्क ऑर्डर, ये इस टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं। अलग अलग कंपनीज में अलग अलग नाम बोलते हैं, कोई वर्क ऑर्डर, प्रोडक्शन ऑर्डर या जॉब कार्ड अलग अलग बोला जाता है। जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसके अगेंस्ट में दे हैव अ लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो भी उनको चाहिए। वो एक स्लिप बनाते हैं, स्लिप बना के स्टोर वाले को देते हैं कि भैया ये इस वर्क ऑर्डर के लिए या इस प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए मुझे एक्स वाई जेड आइटम चाहिए इतनी इतनी क्वांटिटी में। वो स्लिप का आपका स्टोर वाला बंदा क्या करता है, वो टिपिकली अपने रजिस्टर पे नोट करता है, एक्सेल में नोट करता है, जो भी प्रोसेस जो भी सिस्टम आप यूज कर रहे हो उसमें नोट करता है कि ये आइटम दे दिया है, इस ऑर्डर के इस प्रोडक्शन प्रोसेस के अगेंस्ट में दिया है, और वो उसको मटेरियल दे देता है। राइट नाउ इन द प्रीमियम वर्जन, जो फ्री वर्जन है ट्रांसैक्ट का, उसमें सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, बट उसके बेनिफिट्स अलग होंगे। तो जैसे मान लो कोई कोई प्रोडक्शन वाला स्लिप लेके आया, मैंने उसका कोई प्रोसेस चेंज नहीं किया है, यहाँ पे रिड्यूस आइटम करके जो भी आपका स्टोर वाला बंदा है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन एक्सेल या फिर कहीं पे, वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते, आइटम चूज कर सकते हैं जितना भी क्वांटिटी इशू कर रहा है। लेट्स से वो 10 क्वांटिटी इशू कर रहे हैं, वो इशू किया, प्रोडक्शन चूज किया एडजस्टमेंट टाइप पे, यहाँ पे आपका वर्क ऑर्डर नंबर या जॉब नंबर जो भी है वो इंटर करना इंपॉर्टेंट है। लेट्स से जॉब नंबर 123 है या प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर 123 है, यहाँ पे ही कैन ऐड एन नंबर ऑफ आइटम, एक्सेल अपलोड कर सकता है, एंड ऑफ द डे बोथ ऑप्शन आर देयर। ठीक है। प्राइसिंग अब देखोगे कि फीफो के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है प्राइसिंग। ये जैसे ही मैं सेव करता हूँ, अब जब मैं बटरफ्लाई वल्व को देखूंगा ना, तो प्रोसेस वाइज इट इज हैपनिंग द सेम जो पहले भी आप कर रहे थे, लेकिन अभी मैं अगर डिफरेंस देखूंगा तो दो मेजर डिफरेंस आएंगे। लेट्स से मैं ये आइटम सर्च करता हूँ, इसकी डिटेल में जाता हूँ। हम्म, इसकी डिटेल में आप देखोगे यहाँ पे कि मैंने मैनुअल एडजस्टमेंट किया है कितनी 10 क्वांटिटी का, जॉब नंबर कितने के लिए किया है, जॉब नंबर इतने के लिए किया है, किस डेट को किस टाइम पे किया है, सारी एंट्रीज मेरी यहाँ पे प्रेजेंट है। ये मैंने 6/5 को किया है 10 क्वांटिटी, अभी फाइनल क्वांटिटी मेरी इतनी है, जॉब प्रोडक्शन नंबर कितना है। इस सेम आइटम को मैंने 30 तारीख को भी इशू किया था, 30/4 को, कि, कितना क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी किया था, सेम प्रोडक्शन नंबर के अगेंस्ट में। ठीक है। और आपका किस बंदे ने किया था, अखिल ने किया था, तो ये एक लेवल ऑफ चेक आया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको एक रिपोर्ट देखनी है जिसमें आपको पता पता करना है कि इस प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट में ये जॉब नंबर जो चल रहा है, इसमें टोटल आइटम क्या क्या इशू हो चुके हैं, कितने अमाउंट के हो चुके हैं, वो भी आप देख पाओगे, जो कि एक्सेल में देखना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है। अगर मैं रिपोर्ट जाके देखता हूँ तो मेरा स्टॉक एडजस्टमेंट रिपोर्ट को अगर मैं ऑन करके रन करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं जॉब नंबर 123 डालता हूँ, तो ये मेरा पूरा फिल्टर करके बताता है जॉब नंबर 123 में कब कब किस बंदे ने कितना कितना क्वांटिटी ऑफ आइटम इशू किया था या वापस वहां से बच के वापस आया था, दोनों चीज दी हुई है कि अगर कुछ आइटम इशू किया है और बच के वापस आया वो भी दिया हुआ है, और किस प्राइस पॉइंट पे हुआ है, क्योंकि फीफो लेता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्राइस लेता है, तो उसके हिसाब से वो भी कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाता है। सो यू कैन टिपिकली गेट अ प्रोजेक्ट का रॉ मटेरियल जितना भी इशू हुआ है या सेमी फिनिश गुड जितना भी इशू हुआ है उसका कॉस्टिंग क्या पड़ेगी। So those things can easily be calculated. सिमिलरली जब आपका प्रोडक्शन हो जाता है तो यहीं पे आके वो स्टॉक अपडेट भी कर सकते हैं ऐड स्टॉक करके, जैसे मैंने रिड्यूस स्टॉक लिखा था वैसे ही आप ऐड स्टॉक पे क्लिक करते हो, आइटम सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे आप एडिशनल फील्ड्स में बाकी सारी डिटेल डाल के सेव करते हो। दैट्स द बेसिक चेंजेस व्हाट यू आर डूइंग। इसके बाद लेट्स से यू हैव आइटम रेडी विथ यू, स्टोर वाले के पास रेडी है, वो ट्रांजैक्शन पे जाके वापस लेट्स से ये ऑर्डर है, तो इस ऑर्डर पे ओपन करके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सर्च है, अपडेट यहाँ पे कर सकते हैं कमेंट के थ्रू अपनी टीम से, इंटरनली या एक्सटर्नली बोथ वेज ऑप्शन होता है। जैसे इस केस में मुझे इंटरनली अपने अकाउंट्स टीम को बताना है कि मेरा मटेरियल रेडी है, तो मैंने उस बंदे को टैग किया और यहाँ पे डाल दिया मटेरियल रेडी फॉर डिस्पैच, ये डाल के
मैं इंटरनल कर सकता हूँ, एक्सटर्नल कर सकता हूँ, दोनों ऑप्शन है। मैं कुछ अटैचमेंट डालना है, फोटो डालना है, वो डाल सकता हूँ और सबमिट कर सकता हूँ। तो एक तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आपका जितना भी कम्युनिकेशन है वो एक ही इसी ऑर्डर के अगेंस्ट का जो भी आप यहाँ पे डाल आके डाल सकते हो। सो दैट अगेन आप डाउन द लाइन जाके पीछे देखना है तो वो देखना है। इसमें आपको मान लो डिजाइन शीट होती है इन सम केसेस, तो आप यहीं पे डिजाइन शीट भी डाल के रख सकते थे, सो दैट आपको फ्यूचर में कभी वापस जाके देखना है किसी ऑर्डर में क्या डिजाइन पे काम होता है, वो सब रहेगा आपके पास। अगेन जब लेट्स से कि जैसे ही मुझे गो हेड मिलता है कि हाँ रेडी हो गया, आइदर आई कैन रेज अ टैक्स इनवॉइस या एडवांस लेना है, डिलीवरी चालान बनाना है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से बन सकते हैं। एज सुन एज यू क्रिएट द डॉक्यूमेंट, यहाँ पे स्टेटस अपडेट हो जाता है कि इनवॉइस पेंडिंग है, डिस्पैच्ड है मटेरियल नहीं है, वो सारा। फिर आपका ई इनवॉइसिंग का ऑप्शन है, आप ई इनवॉइसिंग बना सकते हो सिस्टम से। या फिर आपका बाकी डिस्पैच डिटेल भेजनी है सामने वाली पार्टी को, उसका भी जैसे ही आप इनवॉइस बनाओगे ऑप्शन आ जाता है। मैं कोई बना हुआ इनवॉइस पे आपको दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। तो ये मेरे पुराने ट्रांजैक्शन बने हुए हैं जिसमें मैंने ओसी बनाया था और इनवॉइस बनाया था। इनवॉइस के अगेंस्ट में मैंने डिस्पैच डिटेल भी डाली थी। तो यहाँ पे भी आ गया आपके पास और सामने वाले के पास भी चला गया। तो ये पूरा स्टेप यहाँ पे दिख रहा है, आई कैन सी कि किस डेट को किस बंदे ने क्या काम किया है, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ स्टेटस आप देख रहे हो अपने आप अपडेट भी हो गया, तो ये ऑटोमेटेड स्टेटस है। अब लेट्स से इसके अगेंस्ट में पेमेंट आया है और उसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो मैं पेमेंट मॉड्यूल में जाके उसकी एंट्रीज कर सकता हूँ यहाँ पे। वो सारे बायर्स एंड सप्लायर रिसीवेबल पेबल पे फिल्टर कर सकता हूँ। यहाँ पे यू कैन सर्च, जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग का ही सर्च कर लेता हूँ मैं। आर्मस्ट्रॉन्ग, मैंने इसका सर्च किया तो इसका मुझे टोटल दिख रहा है कि अमाउंट टू पे कितना था, अभी तक पे कितना हुआ है, अगर मैंने कुछ सेट ऑफ किया है तो वो कितना है, और टोटल बैलेंस अमाउंट कितना है, तो 12,04,000 टाइप बैलेंस है। मैं यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट करके सब इनवॉइस के अगेंस्ट पे पेमेंट ले सकता हूँ, या लेट से मुझे किसी पर्टिकुलर इनवॉइस पे पेमेंट लेना है तो इस पे जाके लॉग पेमेंट करता हूँ मैं। इतना अमाउंट इसमें ड्यूज है, मैं लेट से 1 लाख का पेमेंट आया है, किसके किस डेट को आया है, किस अकाउंट में आया है, क्या प्रोसेस है, उसका रेफरेंस नंबर, एंड आई कैन इजली लॉग द पेमेंट। तो अभी मेरा चेक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे 1 लाख 2 लाख का हो गया, पहले 1,67,000 का था, अभी 2,67,000। तो ये अपडेट हो जाता है। सिमिलरली, अब वी आर नॉट अ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आई वुड से। तो ट्रांजैक्ट क्या करता है कि टिपिकली आपके सारे परचेज सेल्स जो भी हो रहा है वो सारे की का डिटेल्स है यहाँ पे, आपका प्रोडक्शन का डिटेल्स है, आपका इन्वेंट्री के डिटेल्स है। ये सारी डिटेल्स अगर आपको टैली में भेजना है, क्योंकि टिपिकली आपके जो सीए होते हैं या अकाउंटेंट होते हैं दे प्रेफर टैली, क्योंकि टिपिकली टैली में अकाउंटिंग के लिए दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब। इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी अगर मैं बोलूंगा, ट्रांजैक्ट इज वे बेटर। सो वी बोथ द सॉफ्टवेयर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। मैं यहाँ पे कैसे करते हैं वो बताता हूँ, एक रफ आइडिया। तो लेजर सेटिंग्स में जाके सबसे पहले आपको ये 15-20 मिनट का वन टाइम टास्क होता है, जो कि जब आप सिस्टम शुरू करते हो तो आप डिफाइन करते हो कि आपके जो भी टैली में लेजर के नाम है वो यहाँ पे बस आप कॉपी पेस्ट कर देते हो। जैसे मैंने कुछ कर रखा है सैम्पल के लिए, इम्पोर्ट परचेज, जीएसटी परचेज, ये ऐसे ही परचेज लेजर डिफाइन कर सकता हूँ मैं, टैक्स लेजर डिफाइन करने, वो सब वन टाइम अगर डिफाइन कर दिया दैट इज इनफ। ये वहां पे जो नाम दिया हुआ है उसका कॉपी पेस्ट करना है, दैट्स इट। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट अप्रूवल में जाके आप डॉक्यूमेंट जो भी सेल्स परचेज के डॉक्यूमेंट्स अप्रूव करके भेजने हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हो। सेलेक्ट करके यहाँ पे अप्रूवल का ऑप्शन है, अप्रूव करते हो कि ये सारे भेज देने हैं। अगर आपको कुछ नहीं भेजना है टैली में तो आप रिजेक्ट कर सकते हो, तो रिजेक्टेड में मैनुअल में किसी में आ जाएगा, दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। कुछ आपने मैनुअली टैली में बना दिया है तो मैनुअल कर दो, कुछ नहीं भेजना है तो रिजेक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे टैली रिपोर्ट्स दी हुई हैं जिसको आप डाउनलोड करते हो, और हमारा ही एक क्रोम एक्सटेंशन है जो क्रोम पे चलता है। यहाँ पे आप लॉगिन करते हो वो ट्रांजैक्ट की आईडी से। लॉगिन करने के बाद सिस्टम पूछता है आपसे टैली प्राइम है, टैली ईआरपी 9 है। अगर टैली प्राइम नहीं है तो ईआरपी 9 होगा, आप वो सेलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद आप यहाँ पे फाइल जो भी आपने सेल्स भेजना है, परचेस भेजना है, उसकी रिपोर्ट अपलोड करते हो और सेंड कर, यहाँ पे जैसे ही अपलोड करोगे सबमिट बटन आ जाता है। सबमिट करते ही आप वहाँ पे टैली में आपके अपडेट हो जाता है सारा डेटा। सो इट हार्डली टेक्स 2 to 3 मिनट ऑन अ डेली बेसिस या वीकली बेसिस टू पुश ऑल द डेटा। आपको डाउनलोड करना होता है, यहाँ पे अपलोड करना होता है, दैट्स ऑल, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांजैक्ट का फ्री वर्जन है जिसमें फीचर्स आते हैं। आई जस्ट गिव यू एन आइडिया कि पेड वर्जन में और क्या क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो प्रोडक्शन करके एक मॉड्यूल है विच इज देयर इन द पेड वर्जन।
यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा वर्क ऑर्डर से। वर्क ऑर्डर ट्रांजैक्ट में क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपके सामने एक ऑर्डर बनाया था आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए, ग्लोबल 2 mm 12 पीस का, तो वो ऑर्डर अपने आप यहाँ पे लिस्ट हो गया विथ डिस्पैच डेट, कि किस डेट को डिस्पैच करने का आपने कमिट किया है। उसके हिसाब से आप यहाँ पे चूज करके प्रोडक्शन प्रोसेस बना सकते हो। बिफोर क्रिएटिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है, दैट इज बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल में आपके हर आइटम का एक बिल ऑफ मटेरियल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, जो भी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, सिस्टम को एक मैं बना हुआ खोल के दिखाता हूँ आपको क्या होता है, कैसे होता है। तो जो भी लेट्स से इन दिस केस ग्लोब बल्ब प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो एक क्वांटिटी ग्लोब बल्ब बनाने के लिए मुझे क्या क्या रॉ मटेरियल लगेंगे, और इट कुड बी पॉसिबल उस सेमी बल्ब, इसके लिए मुझे बटरफ्लाई बल्ब, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू म्यूट योरसेल्फ। या श्योर। तो थैंक यू। तो लेट्स से इसको मुझे ये बनाने, तो डोंट गेट इनटू द नेम ऑफ द आइटम, ये सारे डमी आइटम्स हैं। आप ग्लोफल बना रहे हो, उसके लिए मान लो बटरफ्लाई वर्ल्ड लग रहा है आपका, तो उसको बनाने के लिए भी हो सकता है कुछ आइटम लगे, वो भी आप डिफाइन कर सकते हो सकता है ये पैनल बॉक्स जो लग रहा था, इसको बनाने के लिए भी कुछ आइटम लगे, वो भी आप एक और लेयर बना सकते हो। तो मल्टी लेवल बॉम्ब होता है आपका यहाँ पे, जो कि डिफाइन किया जा सकता है। नॉट ओनली दिस, इसमें एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी बिजनेस के लिए, इज अ बॉम्ब कॉस्ट। तो 4 लेवल की प्राइसिंग दी हुई है। वन इज एवरेज प्राइसिंग, सेकंड इज फीफो प्राइसिंग, उसके बाद आपका लेटेस्ट प्राइसिंग विच इज लास्ट परचेज प्राइस, एंड डिफॉल्ट प्राइस। डिफॉल्ट प्राइस इज समथिंग जो आपके इन्वेंट्री में आपने प्राइस डाल रखा है। यहाँ पे आपका हर एक आइटम का जितना यूनिट लग रहा है उसके हिसाब से प्राइस, टोटल प्राइस कैलकुलेट होता है, एंड समेशन करके आपको दिखाते हैं कि टोटल प्राइस आपका कॉस्टिंग क्या पड़ रहा है। ये सिर्फ आरएमसी प्राइस है, इसके ऊपर डेफिनेटली आप 10% 20% जो भी आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है, या आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है, वो सब आप ऐड करते हो, एंड देन यू विल गेट अ फेयर आइडिया अबाउट द प्राइस। ठीक है, जो आपका सेल्स प्राइस निकालते हो आप उससे। ये एक बेनिफिट है। सेकंड, इफ आई टॉक अबाउट रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है, जो भी आपके ऑर्डर आए हुए हैं, टिपिकली मैंने बताया था कि आपके जैसे ही ऑर्डर आता है आपकी टीम कैलकुलेशन में लग जाती है। यहाँ पे मैं अगर देखूंगा, जैसे मैं 2-3 ऑर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मुझे ये 3 ऑर्डर का देखना है कि मुझे क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है और क्या क्या नहीं अवेलेबल है। हम्म, तो अगर मुझे वो देखना है, तो मैंने वो ऑर्डर सेलेक्ट किए। सिस्टम क्या करता है, आपके वो ऑर्डर लिस्ट से आइटम उठाएगा, उसका जाके बिल ऑफ मटेरियल देखेगा, उसके सारे रॉ मटेरियल का स्टॉक देखेगा, कितना क्वांटिटी रिक्वायर्ड है बिल ऑफ मटेरियल से कैलकुलेट करेगा। अगर कोई और भी सिमिलर प्रोडक्शन चल रहा है, उसमें इशू नहीं हुआ है मटेरियल, तो ब्लॉक्ड क्वांटिटी करके आ जाएगी यहाँ पे। टोटल अपने परचेज ऑर्डर मान लो उस आइटम को ऑलरेडी रेज किया हुआ है, तो वो दिखा देगा। इनवर्ड लिया है लेकिन अप्रूव नहीं किया है अभी तक स्टॉक में, इसलिए वो स्टॉक में नहीं दिख रहा है, वो दिखा देगा। और आपको कितना और ऑर्डर करना है, वो क्वांटिटी आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल में रिपोर्ट आ जाती है, दैट इज योर लाइफ अलॉट। तो ये आपका इतना कैलकुलेशन करना मैनुअली कई बार टीडीएस होता है, इसको ईज आउट कर देता है यहाँ पे सिस्टम। प्लस तीसरी चीज जो बेनिफिट होती है आपका होता है सब कॉन्ट्रैक्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग जो आप जॉब वर्क के लिए भेजते हो। जैसे आपने पॉलिशिंग के लिए, मोल्डिंग के लिए, किसी चीज के लिए जॉब वर्क भेजा है, वो आप यहाँ से भेज सकते हो। स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट कि सबसे ज्यादा यूज केस इसका कहाँ पे आता है, इज इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। क्योंकि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, टिपिकली हम कुछ आइटम भेजते हैं, बहुत सारे आईसीज और ये सब भेज देते हैं सोल्डिंग के लिए। उसके बाद वहां से हमें ये देखना होता है कि सामने वाले सप्लायर के पास कितना मटेरियल बचा हुआ है। वो चीज का कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है वाया सब कॉन्ट्रैक्ट। सो या, these by this I guess I have covered almost all the modules which are critical for a business purpose. Entire end-to-end flow मैंने कवर किया है। Now we'll love to take the questions। एक चीज का मैं खाली, अभी जो चैट आई हुई है पहले मैं उसको खाली कवर कर देता हूँ। मिस्टर अयांक का आया था कि बॉम्ब वाली चीज समझ में नहीं आई। एक, मिस्टर आई एम फेसिंग इशू इन अपलोडिंग द एक्सएलएस टू द पोर्टल, इट्स रिस्पॉन्डिंग एज डेटा इज एब्सेंट इन द आइटम मास्टर। ओके, ठीक है। तो मिस्टर नीरज का एक इशू आया था, उसके लिए मिस्टर नीरज आई नीड टू चेक द एक्सेल फाइल में क्या इशू है क्या नहीं है। मैं आपको इमीडिएट यहाँ पे सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा। द बेस्ट वे टू गो अहेड आई वुड सजेस्ट, यहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर में एक चैट ऑप्शन है, इसमें जाके आप चैट पे क्लिक करें।
आपके जो भी इशू आ रहे हैं वो आप इशू यहाँ पे लिख दीजिए, जो आपने यहाँ पे मुझे लिखा है ना, आई एम फेसिंग इशू, ये सेम चीज आप यहाँ पे लिख दीजिए और वो फाइल अपलोड कर दीजिए यहाँ पे। वो एक बार अपने एंड पे चेक कर लेंगे एंड इमिडिएटली आपको बता देंगे कि क्या मिसिंग है। इट कुड बी पॉसिबल कि आप जो अपलोड कर रहे हो, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कौन सा डेटा अपलोड कर रहे हो, बट उसमें क्या एरर आ रहा है वो हाथ के हाथ चेक करके आपको हेल्प कर देंगे इमिडिएटली। सो दैट कैन बी डन। उसके अलावा मिस्टर अयान ने पूछा था कि बॉम्ब के बारे में, मैं बॉम्ब एक बार वापस से दिखा देता हूँ जिनका भी मिस हुआ है उनको। एक सेकंड। सॉरी। बिल ऑफ मटेरियल की अगर मैं बात करूं, बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है टिपिकली, लेट्स से मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे एक पेन बनाना है। पेन बनाने के लिए एक क्या क्या चीज चाहिए हो सकती है, तो मुझे रिफिल चाहिए हो सकता है इंक, और रिफिल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, इंक चाहिए हो सकता है। तो ये मल्टी लेवल बिल ऑफ मटेरियल हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ जो बना हुआ बॉम्ब है उसी पे। यहाँ पे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे आइटम जो है ये फिनिश गुड है। लेट्स से जो मैंने पेन का एग्जांपल लिया है, तो पेन इज द आइटम जो मुझे बनाना है फाइनली। अब ये पेन बनाने के लिए जो भी आइटम चाहिएगा, रिफिल चाहिए, स्प्रिंग चाहिए, या आपका बॉडी चाहिए, वो सारे आइटम यहाँ पे डिफाइन कर होते हैं। अब मान लीजिए ये बटरफ्लाई वल्व की जगह यहाँ पे रिफिल लिखा होता। रिफिल बनाने के लिए आपको इंक चाहिए होगा और प्लास्टिक चाहिए होगा, तो वो उसका चाइल्ड प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, चाइल्ड बॉम्ब हो गया टिपिकली। तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो ये सारा चीज डिफाइन करने का ऑप्शन दिया रहता है यहाँ पे। इसका कॉस्टिंग जो निकालना होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि इस एक फिनिश गुड बनाने के लिए टोटल कॉस्ट कितना, रॉ मटेरियल लग रहा है या सेमी फिनिश गुड लग रहा है, उसका कॉस्ट कितना है। तो वो सबमिशन होके आपको यहाँ पे दिख जाता है टोटल कॉस्ट। तो ये मैं बता रहा था। ठीक है, इसके अलावा आई हैव फ्यू मोर क्वेश्चन ओवर हियर। एनी स्पेसिफिक फॉर्मेट टू फॉर अपलोड। अपलोड का मैं आपको अभी तक जो मैंने अपलोड्स बताए वो एक इन्वेंट्री का अपलोड है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ऐड आइटम पे मल्टीपल एक्सेल। इस पे अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है ऑलरेडी, फॉर्मेट एक्सप्लेन किया हुआ है। आप यहाँ पे डाउनलोड एक्सेल टेम्पलेट करते हैं तो ये पूरा फॉर्मेट डाउनलोड हो जाता है। तो उसमें आप आइटम भर के वापस यहाँ पे ड्रॉप करके अपलोड कर सकते हैं। दूसरा जो अपलोड होता है सिस्टम पे, दैट इज बायर्स एंड सप्लायर्स का अपलोड। मैं वहां पे जाता हूँ, सिमिलरली ऐड में जाके अपलोड पे जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बायर एंड सप्लायर का एक फॉर्मेट दिया हुआ है। हर एक फील्ड का मतलब यहाँ पे समझाया हुआ है कि उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, सो दैट आप इजिली डाल पाओ। टेम्पलेट यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप भर के वापस यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप जैसे ही करेंगे अपलोड का ऑप्शन आएगा, आप अपलोड बटन पे क्लिक कीजिएगा, फाइल अपलोड हो जाएगी। अगर कुछ एरर होगा वो स्क्रीन पे वहां पे दिखा देगा। जैसे अभी एक मिस्टर नीरज ने बताया था कि उनको कुछ एरर आ रहा है, वो वहां पे लिख के आ जाएगा अगर कुछ एरर होगा तो। विल इज शो पीएनएल। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो प्रॉफिट लॉस में पीएनएल बनाने के लिए आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे कवर करने पड़ते हैं या बैलेंस शीट बनाने के लिए। व्हाट वी डील विद इज योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी आपके परचेज एंड सेल्स के बिल होते हैं उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाती है, या फिर कुछ जीएसटी की रिपोर्ट्स यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी। इफ आई शो यू, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जीएसटी सेल्स रिपोर्ट एंड जीएसटी परचेज रिपोर्ट, ये आप मंथली किस मंथ की निकालना है वो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। हाउएवर जो भी आपका ओवरऑल ये बनता है क्या नाम है, रिपोर्ट बनती है जो फाइनली आपके अकाउंटेंट बनाते हैं, आपकी फाइलिंग में जाती है, उसके लिए आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक पेटी कैश का जो भी खर्च है, आपका सेल्स, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सैलरीज है, जो भी एडिशनल खर्च हो रहा है वो सब कुछ डालना पड़ता है। उसके लिए व्हाट वी सजेस्ट इज कि आप यहाँ से डेटा को टैली में मूव कर दो, जिससे कि आपको टैली में दोबारा नहीं बनाना पड़े, और जो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या अदर एक्सपेंसेस हैं वो आप टैली में डायरेक्टली डालते रहते हो, उसके बाद आप वहां से निकालते हो। इज इट पॉसिबल टू डू जनरल वाउचर एंट्री? जनरल वाउचर बोल के यहाँ पे कोई टर्म नहीं है। आपका टिपिकली जो परचेज एंड सेल्स का एडवांस होता है वो आप परचेज कर सकते हो। जैसे मैंने बताया जनरल वाउचर में आप कोई भी अमाउंट डालते हो, कि लेट्स से आपने किसी को कैश दे, पेटी कैश दे दिया, उसका भी जनरल वाउचर आप डाल देते हो, वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है।
सो हमने प्रोडक्ट ओवरव्यू कर लिया है टिपिकली, हमने डॉक्यूमेंटेशन देखा है, इन्वेंट्री देखा है, रिपोर्ट देखा है, पेड वर्जन का एक बेसिक आइडिया लिया है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो पेड वर्जन में और डिस्कस करने के लिए है, लेकिन द स्टेज आई बिलीव यू गाइस आर सिटिंग इन, आई वुड सजेस्ट कि पहले आप फ्री वर्जन को एक्सप्लोर कीजिए, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं, क्योंकि 70% थिंग्स आपकी फ्री वर्जन में ऑलरेडी दी हुई है। खाली 3 मॉड्यूल ऐसे हैं जो पेड वर्जन में है, उसको भी आप फ्री में ट्राई कर सकते हैं। कैसे, आई विल जस्ट शो यू। कि जैसे मैंने अभी पेड वर्जन नहीं लिया है, मुझे प्रोडक्शन ट्राई करना है, मैं होम पे जाऊंगा, यहाँ पे नीचे प्रोडक्शन के नीचे एक्टिवेट बटन दिया हुआ है, ट्रायल एक्टिवेटेड, इस केस में, मेरे केस में एक्टिवेटेड है। आप खुद से ट्रायल एक्टिवेट करके उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पे करोगे तभी आप यूज कर सकते हो उसको। टिल 10 बिल ऑफ मटेरियल आप उसको यूज कर सकते हो लाइफ टाइम। ठीक है, जैसे आप 10 बिल ऑफ मटेरियल से ऊपर जाओगे उसके कंस्ट्रेंट आना शुरू हो जाएंगे, वो नहीं, आगे काम नहीं करेगा। तो वो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट ट्राई इट आउट विथ फ्री वर्जन, उससे आपको दिख रहा है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। सी, एजेंडा मेरा यहाँ बेचने का नहीं है। मैंने पूरे पूरे डिस्कशन में कभी भी एक बार बेचने की, यार बड़ा प्लान ले लो या ये कर दो, पैसे दे दो, वो वाला चीज पे हम लोग बिलीव ही नहीं करते। इफ इट इज सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, यू योर सेल्फ विल पे फॉर द पेड वर्जन। दैट इज समथिंग वी बिलीव इन। अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे कितना ही पैसा दे दो, कोई फायदा नहीं है। आप 4 दिन बाद मुझे बुरा भला ही बोल रहे हो कि बेकार सिस्टम ले लिया, बेकार इन्वेस्ट कर दिया। सो दैट इज नॉट एन एजेंडा। इफ यू हैव नोटिस, हम कोई सेल्स कॉल नहीं करते कि सेल्स करके साइन अप किया तो सेल करके फोन करके सेल कर रहा है, वो सब चीज पे हम बिलीव ही नहीं करते। ठीक है, एज अ कंपनी। नेक्स्ट, अगर किसी की कोई क्वेरी है तो इफ यू हैव समथिंग टू से, आप अपने आप को एक एक करके अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अनम्यूट करके इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, आई लव टू हेल्प। अदरवाइज मैं नेक्स्ट स्टेप पे जंप करूंगा। हाँ सर, यस प्लीज। मेरे को ये पूछना है सर। सॉफ्टवेयर तो मैंने 2 दिन से उसको फ्री वर्जन को ओपन करके मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है। एक्चुअली सर मेरा है गारमेंट इंडस्ट्री। ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज करता हूँ, जी। जॉब वर्क के लिए देता हूँ या प्रोडक्शन के लिए सेंड करता हूँ। उसके बाद वो जो फॉर्म है वो गारमेंट के फॉर्म में आता है। ओके। जैसे फैब्रिक लिया और हाँ हाँ, मैंने समझ गया समझ गया। ठीक है सर, समझ गया। गारमेंट के फॉर्म में जब आता है वो साइजेस, मेरे जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, वो साइज वाइज के हिसाब से, जस्ट लाइक अगर ब्लैक ट्राउजर है तो उसके हम्म। 4 या 5 साइजेस है, 28, 30, 32, 34, इस तरह का है। तो मैं जब उसकी प्रोडक्शन में आउट करता हूँ, वो रिसीव करने का भी ऑप्शन है। तो उस टाइम क्या मैं साइज वाइज के हिसाब से ले सकता हूँ उसको? तो साइज वाइज आपको यहाँ पे आइटम डिफाइन करना पड़ेगा। लेट्स से कि मतलब मैं एक रोल भेजा हूँ बाहर, उससे हम्म मेरे जीन्स बन के आ रहा है, जीन्स का अलग अलग वेस्ट साइज के हिसाब से, अलग अलग हम्म डिफरेंट हम्म साइजेस के हम्म बन के। हम्म आई हम्म नीड टू डिफाइन डिफरेंट आइटम ओवर हियर, कि एक आइटम है 32 का, एक 34 का, एक 30 का, 28 का, अलग अलग आइटम के अगेंस्ट में एंट्री लेनी पड़ेगी मेरा। इस कि तरह से अगर मैं इन्वेंट्री एक पेज में देखना चाहूँ तो उसमें तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत लंबा चौड़ा सीट जाएगी। जैसे मेरे जी पास अगर 5 तरह का कलर के ट्राउजर्स हैं जी जी जी। और उसके अगर सबके 5 5 है तो मेरे लिए तो 25 आइटम हो गए, 25 तो 25 काफी आइटम हो हो गए। जाएगा। राइट। तो वो चीज यहाँ पे अलग अलग, क्योंकि हर किसी का आप एक यूनिक कोड बनाते हो, वो यूनिक कोड असाइन होता है सब पे। तो जो आप आइटम आईडी दे रहे हो, दैट दैट इज अ यूनिक कोड टू फॉर ईच प्रोडक्ट। कल को आपको स्टॉक देखना है, कल को आपको उसका प्रोडक्शन देखना है, या उसका कल को आप बिल ऑफ मटेरियल बनाते हो, तो सब एक यूनिक प्रोडक्ट से लिंक होगा कि इस प्रोडक्ट का ये है आइटम है, इसका ये डिटेल्स है, इस पे कितना कपड़ा लग रहा है, क्या लग रहा है, कितने बटन लग रहे हैं, क्या डिजाइन लग रहा है, नहीं एवरीथिंग सर, इज कपड़े लिंक्ड। ट्राउजर तो एक ही जैसे मैं हम लोग एक ट्राउजर बनाते हैं या 28 से 40 तक का, उसका जी। एक ही एवरेज लेके चलते हैं। 1.2 मीटर के करीब फैब्रिक लगा, उस पर जीप उतना ही लगना है, एक ही जीप लगना है हर सी एक चीज पे। सी। लेकिन हर तो मतलब यहाँ पे सिस्टम पे मैं बता सकता हूँ कि ट्रांजैक्ट जिस तरह से डिजाइंड है, यहाँ पे हम्म, आपको अलग अलग आइटम ऐड करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड कि आप सेम एवरेज आउट करके करो। अगर आपको अलग अलग स्टॉक देखना है तो अलग अलग आइटम डालना पड़ेगा। अगर आपको एक ही स्टॉक देखना है कि ओवरऑल मेरे पास इस डिजाइन का कितना पड़ा हुआ है, ट्राउजर कितना हम पड़ा हुआ है, एक्चुअली मैं सर्च भी इसी वजह से कर रहा कि मेरे को रिपोर्टिंग जो है ना वो डिटेल एक ही साथ में ये मिले। एक इसी साथ हिसाब मिलने से के तो लिए सेम रिपोर्टिंग तो बिजी में भी यही सेम है। बिजी में भी वो एक अलग अलग करके आइटम करो तो वो बड़ा वो लंबा चौड़ा आता है। स्टैंडर्ड तरीका वही होता है। भले आप कोई भी सिस्टम यूज कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम अगर ऑर्गेनाइज कर रहा है आपका, तो स्टैंडर्ड तरीका ये होगा। क्या तो आप एकदम स्पेसिफिक कोई गारमेंट के लिए डिजाइन सिस्टम नहीं, एक लेते हो, व्यापार करके है, उसमें तो एक बार ये आइटम को डालो उसके साइज वाइज के हिसाब से वैरी डिसाइड करता होता है, नहीं तो डिपेंड करता है कि अगर कोई स्पेसिफिक डिजाइन सिस्टम है जो आपकी इंडस्ट्री के लिए, गारमेंट के लिए डिफाइंड है,
वहां पे शायद ये चीज हो जाएगी। लेकिन इन जनरल अगर मैं B2B में, क्योंकि ये जेनरिक सिस्टम है, मैंने आपको इनिशियली बताया था कि अब केमिकल कंपनी भी यूज कर रही है हमारा सिस्टम बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स भी यूज कर रहे हैं, स्प्रिंग मैन्युफैक्चरर्स भी यूज कर रहे हैं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आर देयर। उसमें हर इंडस्ट्री में ये स्टैंड ट्रू नहीं करता है साइज का चीज चक्कर, इसलिए इस तरह से डिजाइंड है। तो अलग अलग सिस्टम अलग अलग तरीके से डिजाइन होता है। अगर वो स्पेसिफिक चीज आप यहाँ पे पूछ रहे हो तो यहाँ पे टू आंसर योर क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर रमेश, आपने जो पूछा था P&L के बारे में और बैलेंस शीट के बारे में, जैसा मैंने बताया कि हाँ जी। ट्रांजैक्ट इज नॉट एग्जैक्टली एन अकाउंटिंग सिस्टम। तो ऐसा हाँ। नहीं होगा कि आपको अकाउंटिंग की सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी। जो भी आपने परचेज किया है, परचेज या सेल्स जो भी यहाँ पे एंट्री हुई है, उन उसकी सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे है। आपका ये ऑर्डर्स की वाइज रिपोर्ट है, इनवॉइस की रिपोर्ट्स है। आपका अगर मैं अकाउंट्स के सेक्शन में लिखाऊं तो रिसीवेबल पेएबल की रिपोर्ट्स मिल जाएगी, डेटर्स कितने, क्रेडिटर्स कितने, कितने पेमेंट हुए हैं, वो सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी आपको। जीएसटी के रेस्पेक्ट में आपको सेल्स रिपोर्ट जो होता है या जीएसटी परचेस रिपोर्ट होती है, वो आपकी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से GSTR 1 और 3 भी वो नहीं होगी ना? नहीं, तो उसमें डिफरेंस क्या आएगा ना कि उसमें आपकी और भी डिटेल्स आती है। एक लेवल तक जो भी डेटा यहाँ पे सेव है ना, वो हाँ। सारा डेटा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिपोर्ट में आ जाएगा। लेकिन आपको और भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपने टैली में डायरेक्टली इंटर किया होगा, वो मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि जब आप टैली इंटीग्रेशन करते हो ना, तो ये सारा डेटा जैसे आज के डेट में आपके टैली में है, वैसे का वैसा कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो आपको ऐसे डबल एंट्री नहीं करनी पड़ती, तो वो और वन रिपोर्ट। टाइम कॉन्फ़िगरेशन पे हो जाएगा ये? हाँ, वो वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है। आपको यहाँ पे सी, जो मैंने टैली इंटीग्रेशन दिखाया, यहाँ पे जाके लेजर सेटिंग वाला वन टाइम करना है। उसके बाद आपका डेली करना है, वीकली करना है, आवर्ली करना है, जब भी करना है आपको 2-3 मिनट लगेगा। जो भी आपके अकाउंट्स टीम है या फिर जो भी बंदे आपका टैली हैंडल करते हैं, वो यहाँ से सारा अप्रूव सेलेक्ट करके अप्रूव कर सकते हैं। या फिर ऑटो अप्रूव का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑटोमेटिकली सारे सेल्स का डॉक्यूमेंट अप्रूव कर दो, परचेज का अप्रूव कर दो। अप्रूव करके एक रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड करनी है। उसमें किस डेट से किस डेट की करनी है वो आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ये आप जनरल रिपोर्ट डाउनलोड की। डाउनलोड करके आप वहाँ पे एक्सटेंशन पे जाते हो, क्रोम का एक्सटेंशन होता है जो हमारा इन हाउस प्रोडक्ट है, ठीक है। और उस पर आप लॉगिन करोगे ट्रांजैक्ट का और सेंड कर दोगे। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। ये जो एक्सटेंशन बनाया है इसका रीजन ये है कि ये आपके, क्योंकि आपका अकाउंटिंग डेटा है, कहीं से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए उसमें मल्टीपल चेक्स एंड बैलेंसेस लगे हुए हैं। जैसे कि जैसे मैं मान लो टैली में एक कंपनी है, कंपनी लेजर है एबीसी इंडिया। अब ट्रांजैक्ट में आपने एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बना दिया, तो गलत लेजर नहीं बन जाए इसलिए सिस्टम वहां पे चेक करता है कि ये पहले टैली में अवेलेबल है कि नहीं है, उसी लेजर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो वो एरर दिखाएगा कि देखो यहाँ पे मुझे एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है जो कि मुझे टैली में नहीं मिल रहा है। तो आप वहां पे चूज कर सकते हो कि एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज इक्वल्स टू एबीसी इंडिया। वो आपने चूज कर दिया तो वन टाइम कर दिया, वो सेव हो गया। या तो सेम नाम है तो अपने आप ले लेगा, अगर सेम नहीं है तो वो डिफरेंस चेक करता है। तो वो सारे चेक्स एंड बैलेंसेस यहाँ पे लगे हुए हैं इस एक्सटेंशन में। तो उसके थ्रू हम लोग भेजते हैं। ये आप एक दो बार सी, मैं आपसे झूठ मूठ की कहानी बनाना, अगेन मैंने आपको बोला बेचना काम नहीं है। फर्स्ट और सेकंड टाइम या 2-3 बार जब आप करोगे, ऐसा हो सकता है क्योंकि डेटा आपने जब टैली में से निकाला और यहाँ पे अपलोड किया है आइटम का या कंपनी का, आपने उस पर क्लीनिंग की होगी, ये नाम को सही किया होगा, तो हो सकता है इनिशियली एरर देगा कहीं कहीं पे, एक दो जगह जब आप सेंड करोगे नाम मैच नहीं कर रहा है। अगर सेम नाम है तो 100% कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर नाम मैच नहीं कर रहा है, कुछ आपने चेंज कर दिया है या किसी ने टैली में जाकर चेंज कर दिया, तो वो एरर एक दो बार देगा। लेकिन जैसे ही आप पहली बार सही करते हो ना, वो अगली बार ऑटो सेव हो जाता है। नहीं, लेजर भी टैली में भी लेजर क्रिएट करना पड़ेगा क्या? जैसे हम सेल इनवॉइस के एंट्रीज में कर रहे हैं, जी। क्रिएट कर लिया तो टैली में भी करना पड़ेगा या अपने नहीं आप? नहीं, वो अपने आप क्रिएट कर देगा, आपको नहीं क्रिएट करना, वो सिस्टम अपने आप कर देगा और नॉलेज। एक चीज और पूछ रहा हूँ मैं, जैसे हम लोग अभी टैली में काम कर रहे हैं जो भी है अकाउंटिंग का, तो उस जी। भी हमारे जैसे सप्लायर है या बायर है, तो उनका जो डेटा है वो इसमें ट्रांसफर हो सकता है? उसका उसकी उनका नाम वगैरह डिटेल? हाँ, तो वो आपको टैली से निकालना पड़ेगा, यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होता है टैली में, और यहाँ का फॉर्मेट थोड़ा चेंज होता है। टैली से निकालने का तरीका है, मैं उसके लिए वीडियो भेज सकता हूँ आपको, टैली से कैसे एक्सपोर्ट होगा। या फिर आपके अकाउंट्स जो भी हैंडल कर रहे हैं ना, वो लोग इस चीज में एक्सपर्ट होते हैं टिपिकली, दे नो उसकी टैली से कैसे निकालना है। उसको उसमें एक्सेल में लेके मतलब इसमें हाँ, उसमें एक्सपोर्ट कर एक्सेल में सकते निकाल के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मतलब मैं हैं? फ्रैंकली बताऊँ, अकाउंट्स वाले मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं टिपिकली, क्योंकि नहीं वो ठीक है, बहुत नहीं मैंने बहुत साल से करके टैली देखा में। है, मैंने कुछ तो किया अभी मल्टी, जैसे मैंने क्या, जो हमारे प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल, जी मल्टी आइटम का आपने एक एक्सेल शीट का फॉर्मेट दिया, जी फिर जी। तो वो अपने आप लोड ले
हो गया। सेम तरीके से आपका तो वो कंप्लीट। वो अच्छा अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कस्टमाइजेशन के लिए लिखा है, जी कस्टमाइजेशन में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? कस्टमाइजेशन नहीं होता, कस्टमाइज रिपोर्ट लिखी होगी आपने। जैसे एक मिनट, आपने कहाँ पे देखा है? आपने संजय की वेबसाइट पे देखा होगा आई बिलीव। कस्टम इंटीग्रेशन जो होते हैं ना, जैसे अभी जो इंटीग्रेशन हमने बना रखे हैं आफ्टर शिप के साथ बना रखा है। आफ्टर शिप, आफ्टर आफ्टर शिप करके एक प्रोडक्ट होता है, उसके साथ कस्टमाइजेशन बना रखा है। जैसे उस पे आप क्या कर सकते हो मैं बताता हूँ। मेरा जैसे ही मटेरियल डिस्पैच हुआ, मैंने डिस्पैच डिटेल डाली, वो ऑटोमेटिकली अगर आपने कुरियर से किया है किसी भी जो भी 200-300 कुरियर कंपनीज हैं जो स्टैंडर्ड है, तो वो अपने आप स्टेटस अपडेट आपको कर देगा कि ये कुरियर डिस्पैच हुआ कि नहीं हुआ। दैट इज वन केस। दूसरा हमारा गूगल शीट इंटीग्रेशन है। जैसे ये जो रिपोर्ट्स आप देख रहे हो यहाँ पे, इट कुड बी पॉसिबल कि आपको ये 3 4 5 रिपोर्ट को मर्ज करके एक साथ देखना है। सेल्स की, परचेज की, इन्वेंट्री की, सब मर्ज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि गूगल शीट इंटीग्रेशन बना हुआ है, उसमें आपको कौन कौन सी रिपोर्ट चाहिए वो आप चूज कर सकते हो। वो डेटा अपने आप डेली रात को अपडेट हो जाता है। और वो फ्लेक्सिबिलिटी होने से क्या होता है, लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गूगल शीट पे एक्सेसिवली काम करते हैं कि उस पे ऑटोमेशन लिख लिया, या उस पे ये किसी एक्सटर्नल पार्टी से पूरा ऑटोमेशन लिखवाते हैं गूगल शीट पे अपने हिसाब से डैशबोर्ड बनाने के लिए। क्योंकि सारा डैशबोर्ड हर कंपनी के हिसाब से बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा सिस्टम पे, स्टैंडर्ड सिस्टम। वो अपने हिसाब से गूगल शीट पे, या फिर गूगल शीट को डेटा स्टूडियो से, या फिर डेटा रिप्रेजेंटेशन टूल्स होते हैं डिफरेंट, उससे इंटीग्रेट करते हैं। तो उसके लिए डेटा फ्लो का जो इंटीग्रेशन है ना, वो सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो वो कस्टम इंटीग्रेशन में के अंदर आता है। ठीक है। कस्टमाइजेशन नहीं होता है सिस्टम का। नहीं होने का कारण मैं बता देता हूँ, आपको लग रहा होगा कस्टमाइजेशन नहीं करते तो ये स्टैंडर्ड क्यों है, तो रिजिड क्यों है। तो हम लोग का सिस्टम, मतलब वी आर एवरी 15 डेज वी ब्रिंग अ न्यू फीचर, वी ट्राई टू ब्रिंग अ न्यू फीचर, रिलीजेस आते रहते हैं। जो सिस्टम आप आज देख रहे हो 15 दिन बाद हो सकता है उसमें 2 फीचर और एडेड होगा। ठीक है, या कुछ ना कुछ चीजों पे हमने काम किया होगा। ये मैं तभी कर पाता हूँ जब मैं अक्रॉस द कंट्री जिसको भी प्रोडक्ट दिया हुआ है सेम प्रोडक्ट रखा है। तो ऐसा नहीं होगा कल को आप बोलोगे कि एक XYZ कंपनी को मैंने 4 फीचर एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, आपको 4 फीचर कम दिए हुए हैं, किसी और को कुछ और फीचर दिया हुआ है। वैसा नहीं होगा। मैं जो भी नए फीचर्स लाऊंगा वो सारी कंपनीज के लिए एक साथ में आ जाएंगे। अच्छा, इसमें जैसे हम लोग इसमें पेड वर्जन के साथ जाते हैं और वो कर, मतलब मैं फ्री वर्जन में यूज किया, मैंने, मेरे को सही लगा, तो अभी पेड जी की बात कर रहा हूँ। तो हमें जैसे कई चीजें जैसे समझ में नहीं आ रही, या उसमें जैसे अभी आपने बोला कि टेली के साथ इंटीग्रेशन करना है, जी। उसमें जा करके उसके लिए मैं जो जाती बेस्ट है, तरीका बता रहा हूँ, देखिए तो सबसे उसमें फिर फास्ट, सपोर्ट के लिए क्या? मैं बता रहा हूँ सबसे फास्टेस्ट तरीका, अगर हम मुझसे कोई भी, भले आप किसी भी वर्जन में हो, तो जो मेरा चैट सपोर्ट है ना, उससे हाँ, फास्ट मैं कहीं पे सपोर्ट नहीं दे पाता हूँ। अगर आप चैट रेस ठीक। कर रहे हो तो उसका क्या होता है, अगर आपको कुछ भी दिक्कत भी आ रही है चैट का, अगर वहाँ रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हर चैट के बाद रेटिंग आपसे पूछता है। अगर आप रेटिंग, एक भी रेटिंग खराब आती है ना, तो दैट द इंटायर टीम इज आंसरेबल टू एवरीवन, कि एटलीस्ट मुझे आंसरेबल है कि वीक में क्या क्या हुआ है, एक रेटिंग भी खराब क्यों आई है, उस सब का जवाब तुमको देना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो आपको वहां पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उन्होंने उनको टिकट रेस करना है, टिकट का SLA पॉलिसीज बने हुए हैं कि इतने दिन में ये टिकट सॉल्व होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या होगा, वो सब कुछ बना हुआ है बैकएंड पे। तो वो प्रॉपर चैनलाइज होता है, मेरे पास रिटर्न होता है एवरीथिंग, तो दैट इज द बेस्ट वे। उसके अलावा अगर कभी दिक्कत हो रही है तो वी कंडक्ट सेशंस जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। आप वहीं चैट पे रेस कर दोगे तो वो खुद ही से रेस कर देंगे। अगर उनको लग रहा होगा कि नहीं सॉल्व हो सकता चैट पे, दे विल शेड्यूल अ वीडियो कॉल और फोन कॉल, whatever is required in that case, या एनी डेस्क लेके आपके साथ बैठ के, आपकी सेटिंग्स में कहीं कोई दिक्कत आ रही है वो हाँ, आपको मैं समझा, वही बोल रहा था कि चैट पे अगर नहीं हुआ तो वो तो फिर वही, आप। तो सर मैं फर्स्ट प्रेफर करता हूँ चैट। अगर वहां नहीं हाँ, हुआ तो वो ही आपको वो इमीडिएट फिर सोल्यूशन अपने देगी। आप वो वो नेक्स्ट वो प्रोसेस जो खुद ही नेक्स्ट प्रोसेस पे ले जाएगी। लोकल टीम उनकी के पर्टिकुलर हर सिटीज के लिए नहीं, नहीं। ठीक है, क्योंकि चलिए। दैट्स द फास्टेस्ट ठीक वे है। टू सर्व। हाँ, मैं अच्छा बाकी है। लोगों को एक चीज दिखा देता हूँ, एक दो चीज की हम्म, अभी नेक्स्ट स्टेप कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो हमने एक डॉक्यूमेंट भी, मैं इसके मीटिंग के बाद शेयर कर दूंगा, ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें आपका मास्टर सेटअप कैसे होगा, परचेज सेल्स का ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, इन सब का सेटअप करने का बेसिक आइडिया दिया हुआ है। आपका यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी लगे हुए हैं कहाँ से करना है। अब बारकोड, यहाँ पे चलिए, QR स्कैनर दिया हुआ है और लिंक दिया हुआ है।
आप इस पे क्लिक करोगे तो इसका वीडियो आ जाएगा, स्कैन करके अगर आपको मोबाइल पे देखना है तो यहाँ पे स्कैनर दिया हुआ है। सिमिलरली हर स्टेप का स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो आपको ट्रांजैक्शन कैसे यूज करना है, वहाँ पे आइटम कैसे ऐड होगा, एवरीथिंग इज गिवन ओवर हियर। तो अगर कोई भी रेफरेंस के लिए चाहिए तो बेसिक सारा है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही हो, ये मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, फिर भी दिक्कत आ रही हो, अगेन आई वुड सजेस्ट किसी भी पॉइंट पे, मान लो आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा हो, आप यहाँ पे मेरा FAQ सेक्शन में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें दी हुई है। मैं आपको इसमें जाने भी नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपको इसमें भी नहीं जाना है, अलग अलग बहुत वीडियो अगर आपको इसमें भी नहीं जाना है तो आप यहाँ चैट पे पूछ लो कि यार मुझे टैली इंटीग्रेशन का वीडियो दे देना। लेट्स से आपका एग्जांपल ही लेते हैं, अभी इन्होंने पूछा था मुझसे टैली इंटीग्रेशन कैसे करें, तो मैं यहीं पे टैली इंटीग्रेशन का वीडियो चाहिए मुझे, ये चीज लिख के भेजूंगा, दे विल इमीडिएटली शेयर मी द वीडियो लिंक। तो वो वीडियो बना होगा मेरे पास, मोस्ट ऑफ द चीजों का मेरे 500 प्लस वीडियोस है, तो सारे वीडियोस मोस्टली बने हुए हैं कि ये फीचर कैसे यूज करना है। वो एक बार देख लोगे आपको समझ, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ सेम चीज वीडियो में होगा। अभी और भी जो, इसमें ये जैसे डेटा सिक्योरिटी स्केलेबिलिटी वगैरह के बारे में कुछ बताएंगे आप? जी मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेटा बैकअप की बात करता हूँ, डेटा बैकअप कैसे रहता है क्या रहता है। तो हम लोग AWS का सर्वर यूज करते हैं, अगर आप गूगल करेंगे अभी AWS सर्वर रैंक 1 करता है वर्ल्ड वाइड। अगर AWS सर्वर डाउन होता है तो वर्ल्ड वाइड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा सारी कंपनीज को। तो विच इज द बेस्ट सर्वर अवेलेबल इन द मार्केट पूरी दुनिया में, वो हम लोग यूज करते हैं। उसका 7 बैकअप बाय डिफॉल्ट AWS ही रखता है, तो आपका अच्छा उसका डाउन टाइम 0 रहता है। लास्ट ईयर के डाउन टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 10 मिनट के लिए सिस्टम डाउन हुआ था पिछले पूरे साल में। उसके अलावा रात को शेड्यूल्ड प्लान्ड डाउन टाइम होते हैं हमारे, जो मैंने बताया अपडेट करते हैं सिस्टम, तो 10 बजे से रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के बीच में हम लोग डाउन टाइम कई बार होता है, लेकिन वो प्लान्ड होता है कि हम लोग सिस्टम को डाउन करके अपग्रेड रिलीज कर रहे हैं, अपडेट रिलीज कर रहे हैं, तो वो वाली चीज होती है। इसके अलावा डेटा सिक्योरिटी में सारा डेटा इंक्रिप्टेड रहता है। जब आप चैट भी रेज करोगे तो आप देखोगे एक ऑप्शन होता है यहाँ पे SID नंबर दिया हुआ है, दे विल ऑलवेज आस्क यू फॉर द SID नंबर, सो दैट उनके पास रिकॉर्ड रहे किस SID के अगेंस्ट में रिक्वेस्ट आई थी। उनके पास ये डिटेल नहीं रहती टिपिकली कि ये कौन सी कंपनी का क्या डेटा है। डेटा के लिए हमेशा अगर उनको एक्सेस भी चाहिए तो क्या तो आपका एनीडेस्क लेंगे, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिनको वो अपने एंड पे रेप्लिकेट करना है तो दे विल आस्क यू टू ऐड देम एज अ यूजर सो दैट दे कैन एक्सेस योर डेटा। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, आप उसको यूजर कितना एक्सेस देना चाहते हो, किसको ऐड करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, वो सब कुछ आपके ऊपर है। तो जैसे आप जीमेल यूज करते हो वैसे ही आप यहाँ पे सेफली यूज कर सकते हो, यूजर टीम ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग मेंटेन करते हैं। और अभी बीइंग लास्ट 5 इयर्स में जीरो डेटा लॉस, मतलब 100% डेटा सिक्योरिटी हमने मेंटेन की है कि जीरो डेटा लॉस हुआ है। वी हैव लिस्टेड कंपनीज एज वेल, उनके केस में अगर मेरा डेटा लॉस होता है या डेटा लीकेज होता है किसी भी पॉइंट पे, तो इट इज नॉट ओनली कि वो जेल जाएंगे मैं भी जेल जाऊंगा, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज हैं जो यूज कर रही हैं। सो इट इज नॉट ओनली सही। कि अनलिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनीज भी ट्रांजैक्ट यूज कर रही हैं बॉम्बे बेस्ड। अच्छा। ठीक है, I guess I was able to serve you guys and make you understand everything. And thanks a lot for the ठीक है, time and conversation. थैंक यू वेरी मच। Ashwin. Thanks a lot for joining. Have a great day, wonderful day. कुछ भी दिक्कत हो, you can register again for the session. That's not an issue. Thank ओके। thank you.